Can the speaker disqualify MLAs even as the court is hearing the case? Or should governors withhold assent to the bills which have been legitimately passed by the legislature of a particular state? Can the Prime Minister be summoned by the judiciary itself? If these questions confuse you or confound you, then congratulations. You've already stepped into the grey zones of separation of powers. Hello everybody, my name is Advocate Varun Dutt and I welcome you all to this lecture on separation of powers, a topic for the purposes of UPSC mains paper 2 of GS for UPSC. Okay, let's get ahead with this topic. So to begin with, what is separation of powers? Concept क्या है अगर हम बोले तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है. अगर हम पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशंस की बात करें तो इन पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इट टिपिकली रेफर्स टू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद सोवर्निटी ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन. पीजीटीएस ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल साइंस थ्योरीज में. ठीक है, पॉपुलेशन से मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिसाइड हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टेट. Then there is territory, a clearly defined geographical area over which the state exercises sovereignty. Then there is existence of a government, an organization that will make as well as enforce laws. And then finally there is the concept of sovereignty, a supreme authority within the territory with respect to all the peoples residing in that territory and when it comes to taking decisions on behalf of the population of that particular territory. Okay, a complete absence of any sort of external control is the primary attribute of any sort of sovereignty. Okay, कोई भी जो स्टेट होता है उसमें तीन मेजर फंक्शंस होते हैं. There is a function of legislating or making laws. Then there is a function of implementing or executing or implementing the laws. And then there is a finally the function of interpreting of the laws. अब ये तीन functions usually तीन organs करते हैं perform. लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम होता है इन लॉज को इंप्लीमेंट करना पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस के फॉर्म में. एंड देन फाइनली देयर इज जुडिशरी व्हिच हैज बीन गिवन द राइट टू इंटरप्रेट द लॉज. ओके, देखिए विद दैट सेड अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को एसेंशियली डिफाइन करें तो व्हाट इट एसेंशियली मींस इज दैट सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ थ्योरी दैट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द गवर्नेंस रिलेटेड रिस्पांसिबिलिटीज अमंगस्ट थ्री डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ द स्टेट and with the legislature, the executive as well as the judiciary into separate organs so as to prevent the concentration of power in the hand of any one of them or more of them and more importantly to ensure liberty of the citizens of the state. देखिए अगर जो ये तीन फंक्शंस हैं लॉ मेकिंग, लॉ इंप्लीमेंटेशन एंड लॉ इंटरप्रिटेशन, ये तीनों फंक्शंस अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर इंडिविजुअल बॉडी में असाइन कर दिए जाएंगे तो इट इज बाउंड टू इन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अमाउंट टू अथॉरिटेरियनिज्म और आर्बिट्रेरीनेस व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग और फॉर दैट मैटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज or interpretation of laws or resolving disputes which arise between the state as well as its subjects with respect to those laws. And this is precisely where the doctrine of separation of powers comes into picture. देखिए origin और purpose की अगर हम बात करें तो historically बहुत पुराना concept है. It tracks its roots all the way to the times of Aristotle. जो Aristotle थे उन्होंने earliest division of powers दिया. उन्होंने जो स्टेट के फंक्शंस हैं उसको उन्होंने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया. द डेलिबरेटिव फंक्शंस जो आज के कंटेक्स्ट में हम लेजिस्लेटिव फंक्शंस से कनेक्ट कर सकते हैं, द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड द जुडिशियल फंक्शंस. ठीक है, तो एरिस्टोटल का जो बहुत फेमस वर्क था पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने ही फर्स्ट हिंटेड एट द नीड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द पावर इन गवर्नेंस and categorizing the functions of the state between this deliberative, magisterial and judicial functions. Okay, recent past की अगर बात करें, recent history की, तो उसमें person named Montesquieu, he is credited with respect to popularizing the concept of separation of powers in modern history. Okay, so he popularized the modern form in his book called The Spirit of Laws. And in his book he essentially warned against concentration of power. जैसे एक लॉर्ड एक्टन का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, लॉर्ड एक्टन का, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. ये जो स्टेटमेंट है इट समवेयर डाउन द लाइन रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ मोंटेस्क्यू आल्सो, कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में स्टेट की सारी पावर्स को असाइन कर देंगे तो इट इज बाउंड टू हैपन दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम whosoever person is the person or the group of people who are wielding authority, they are bound to use it for their own purposes or for their own benefits. Okay, so Montesquieu जो थे उन्होंने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉज में जो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिस्पेक्ट में नोशंस दिए, उसमें व्हाट ही एसेंशियली सेड इज दैट व्हेन द लेजिस्लेटिव and executive functions are united in the same person, there can be no liberty.
he was essentially talking on separation of powers with respect to its impact on the liberty of a man. Okay, and therefore he argued for a tripartite system. जो पावर है उसको तीन विभागों में बांटा जाना चाहिए, a strict compartmentalization of all the functions or of the organs of the state into legislative, executive and judicial branches. Okay, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेचर है इट शुड मेक लॉज, जो एग्जीक्यूटिव है वो इंप्लीमेंट करेगी लॉज को, और जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करेगी. मोरओवर what he essentially said is कि there should be strict compartmentalization, there should be no overlap or no mingling among these three organs of the state. अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड टू स्ट्रिक्टली अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन प्रोपोनेटेड बाय मोंटेस्क्यू इन इट्स लिटरल फॉर्म. उन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते टाइम इनकी जो अप्रोच है उसको एकदम स्ट्रिक्टली और डायरेक्टली अडहेयर किया है. अकॉर्डिंगली वी सी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आर्टिकल 1 जो है इट टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. देन आर्टिकल 2 इट टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. अनलाइक इंडिया, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. The president is the de facto executive and he is the one who is responsible for implementing laws as well as to doing all the executive actions. Then finally article 3 जो है it created an independent judiciary for the interpretation of laws. अब ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखे गए हैं. Unlike India, the president is not a member of the parliament. Okay, in case of USA. देखिए पर्पस की अगर हम बात करें तो दो चीज आपको याद रखनी है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट टेरनी. कि अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन में या फिर एक बॉडी ऑफ पर्संस में सारी पावर को कंसंट्रेट कर देंगे तो इट इज बाउंड टू रिजल्ट इनटू अ सिचुएशन वेयर यू गोइंग टू यूज इट फॉर देयर ओन पर्पसेस और फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. ठीक है, एंड इवेंचुअली द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टेट विच इज टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, लुक आफ्टर द बेनिफिट्स ऑफ द सिटीजन. वो सारे जो पर्पसेस होते हैं किसी भी स्टेट के, वो सारे के सारे पर्पसेस डिफीट हो जाएंगे. इट वुड इवेंचुअली रिजल्ट इनटू टिरनी. मोरओवर जो सेपरेशन ऑफ पावर इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द पर्पसेस ऑफ एंश्योरिंग लिबर्टी. हर चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो उसके सिटीजन जो है उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स इनवेरिएबली अवेलेबल है विच आर कंसिडर्ड मिनिमम और बेसिक फॉर द अटमोस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सिटीजन और सिटीजनरी एज अ होल, और उनको बेसिक और इनएलिएनेबल समझा जाता है. अब ये जो राइट्स और लिबर्टीज हैं इनको अगर किसी भी सिटीजन को ट्रूली इंजॉय करना है तो इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट द ऑर्गन्स work within some sort of checks and balances or other limits which are assigned over them. Okay, then again separation of power creates a system of checks and balances. अभी checks and balances का मतलब क्या है? When you divide the power between the different organs of the state clearly, then the power is divided in such a manner that each organ acts as a check on arbitrary exercise of power by the other organ, and it balances the power of one organ by the other. जैसे जो जुडिशरी है, अब देखिए जुडिशरी जो है इट हैज द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉज, बट इवन इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड एट द सेम टाइम जो सेनेट होगी या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उनकी पार्लियामेंट होगी एसेंशियली, इट रैटिफाइज दैट डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. तो अब यहां पे हुआ क्या है, जो जुडिशियल फंक्शन है लॉ इंटरप्रिटेशन का वो जुडिशरी के पास रखा गया है, बट जो अपॉइंटमेंट का फंक्शन है वो आपने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में बाइफरकेट कर दिया है. अकॉर्डिंगली हो क्या रहा है, दे कैन एक्ट एज अ चेक ऑन द आर्बिट्ररी ऑफ एक्साइज ऑफ पावर बाय द जुडिशरी. ओके, देन अगर हम की प्रिंसिपल्स की बात करें कि भाई व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेशलाइजेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, तो अब इसमें है क्या, देयर आर 3-4 प्रिंसिपल्स जो हमको याद रखने चाहिए हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिस्पेक्ट में. फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. देखिए जब भी हम पावर को क्लियरली सेग्रीगेट कर दे रहे हैं ऑर्गन्स के बीच में, इट इज इवेंचुअली बाउंड टू रिजल्ट इनटू अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स एज वेल एज अ रिजल्टेंट स्पेशलाइजेशन on part of the particular organ which is dealing with that particular power. कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को कॉन्टिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करता जाएगा, तो दे आर बाउंड टू स्पेशलाइज विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू यूज दैट अथॉरिटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर है, अब वो लॉ मेकिंग फंक्शन पे है, तो लॉ मेकिंग फंक्शन में इवेंचुअली दे आर बाउंड टू स्पेशलाइज, दे आर बाउंड टू अंडरस्टैंड द नाइसिटीज एज वेल एज मिनिस्क्यूल एरियाज विद रिस्पेक्ट टू लॉ मेकिंग. सेम चीज गोज विद रिस्पेक्ट टू लॉ इंप्लीमेंटेशन फॉर एग्जीक्यूटिव या फिर लॉ इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी एंड सो ऑन. दिस स्पेशलाइजेशन essentially what it does is it enhances efficiency, it enhances
clarity, and most importantly it enhances the accountability. Okay, then there is the concept of checks and balances. जिसे मैं आपको भी पहले बता रहा था कि each organ can check the powers of the other organs to ensure accountability of all the three organs of the state. For example, courts can review the action of the executive. Moreover, they can review as well as declare unconstitutional any arbitrary or unconstitutional laws made by the parliament, and so on. Parliament जो है, it can impeach judges in case they act in case of a proved misbehavior or incapacity on part of the judges in case of India. ये जो mutual control हो रहा है, see, this creates a system of a kind of a system of constitutional balance and prevents overreach by any organ of the state. ओके, देन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. देखिए, इंडिपेंडेंस का सिंपली मतलब क्या है कि कोई भी जो ऑर्गन है, इट शुड नॉट एनक्रोच अपॉन द स्पेस दैट हैज बीन रिजर्व्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑर्गन. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ थिंग्स में सेपरेशन ऑफ पावर्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए कोई पर्टिकुलर रोल डिफाइन करता है, डेलिनेट करता है, वो रोल उसी ऑर्गन को अलाउ करना चाहिए परफॉर्म करना, ना कि किसी दूसरे ऑर्गन को अलाउ कर देना कि भाई आप भी उसमें इंटरफेयर कर सको. ओके, and then finally connected with it is the principle of non interference. वो essentially what it reflects is, in fact, दो ideas ये बोलता है कि एक तो idea that the government must be limited by law. जितनी भी हमारी गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स हैं, they must remember that they are supposed to act within their particular periphery, within the confines of their limits, in accordance with the limits that have been laid down by the law. एंड मोरओवर, ये जो ऑर्गन्स अपनी लिमिट्स के अंदर जब काम कर रहे हैं, ठीक है, देयर ऑल्सो दे मस्ट परफॉर्म द एक्शंस दैट दे आर सपोज टू परफॉर्म विद इन द लीगल बाउंड्स और लीगल लिमिट्स विच आर लेड डाउन बाय द लॉ. ठीक है, अब देखिए एसेंशियली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. इट इज एसेंशियल फॉर अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज वेल एज एंश्योरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी ऑर्गन्स हैं वो अपने डिफाइंड एरियाज में जब वो काम कर रहे हैं, देन इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट द supremacy of the constitution as the supreme law of the land, it gets promoted and it gets ensured within the functioning of the governance mechanism of the state as a whole. Okay, moreover, when each branch it knows its limits, it reduces institutional friction. ये बहुत जरूरी है. देखिए, कोई भी institutional crisis कब आता है, जब either you are not aware of the constitutional limits or for that matter constitutional peripheries, or you overreach your peripheries, or you encroach into some other organ's periphery, then it is a scenario where friction arises. अगर आपको अपनी peripheries याद है, तो it is bound to not result in any sort of institutional crisis or institutional frictions between various organs of the government. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, तो देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, इनको दो तरह से हम यूज कर सकते हैं. एक है कि भाई स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, बेसिकली अ कंपार्टमेंटलाइजेशन विच इज इन कॉन्सोनेंस और विच इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट वाज प्रोपाउंडेड बाय मोंटेस्क्यू. अब मोंटेस्क्यू जो है, उन्होंने एसेंशियली क्या कहा कि जो तीन ऑर्गन है, इनके बीच में एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, और हर ऑर्गन जो है इट मस्ट वर्क विद इन द कन्फाइंस ऑफ द स्पेयर रिजर्व फॉर इट. इट शुड नोवेयर इन एनी सर्कमस्टेंस एनक्रोच अपॉन द स्पेयर दैट इज रिजर्व फॉर द अदर ऑर्गन्स. लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव के काम में कोई इन्वॉल्वमेंट ना रखे, कोई इंटरफेरेंस ना रखे. जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के कामों में कोई इंटरफेरेंस ना रखे, सब अपना अपना काम करते रहे. दैट इज व्हाट एसेंशियली मोंटेस्क्यू प्रोपाउंडेड. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में हम बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव नॉट strictly adhere to the norms of the doctrine of separation of power. We have only partially adopted or this particular doctrine. हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं, उसमें आप बहुत क्लियरली फंक्शनल ओवरलैप्स देखते हैं. देयर इज नॉट अ रिजिड डिफरेंशिएशन ऑफ देयर पावर्स. देन अगेन जुडिशरी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, इसके बीच का क्लियर सेपरेशन वी कम अक्रॉस इट जब हम आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं. तो आर्टिकल 50 essentially जो है what it provides for is that it provides for a directive principle wherein it provides that the state shall take steps to ensure a separation of judiciary from the executive. ठीक है, अब यहां पे एक चीज और आपको पकड़नी है कि ये जो पॉइंट आर्टिकल 50 में मेंशन है, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल. इट हैज नॉट बीन मेड अ फंडामेंटल राइट और इट हैज नॉट बीन पुट अप इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है कि भाई ठीक है, इट हैज टू बी फॉलोड, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज ऑफ अटमोस्ट रेलेवेंस, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए इस केस में. ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, तो एज आई सेड बिफोर, फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो क्लियर कट और प्रिसाइज मेंशन नहीं है इस डॉक्ट्रिन का. देयर इज नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन India follows the concept of a functional overlap for with respect to the separation of power approach. Here, it is not strictly separated, but rather the principle of separation of power is embedded through multiple constitutional safeguards as well as practices. ठीक है. अब अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलते हैं तो 79 हम लोग का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी और द प्राइमरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट. देन वी हैव आर्टिकल 74 व्हिच टॉक्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट व्हिच इज आवर प्राइमरी एग्जीक्यूटिव बॉडी. ठीक है ना. अब सेंट्रल लेवल पे आपका जो प्राइमरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया वो आपका लेजिस्लेचर हो गया, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमरी एग्जीक्यूटिव. ठीक है. अब इन सब के आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट प्रोविजंस भी दिए हुए हैं. जैसे आर्टिकल 107 से 117 अगर आप देखेंगे, दे एसेंशियली डील विद द लॉ मेकिंग पावर और लॉ मेकिंग रिलेटेड पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. सिमिलरली आर्टिकल 74 है, उसको अगर हम आर्टिकल 53 के साथ रीड करें या फिर आर्टिकल 245 है, इन सबको अगर हम रीड करें तो वी गेट अ जिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. 53 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 243 टॉक्स अबाउट द executive power. Then again we have article 73 as well as 74 which deal with the executive power and how it's supposed to be enforced and so on. ठीक है. Then ये तो हो गए इनकी सेपरेशन के रिस्पेक्ट में. बट अगेन वी हैव एरियाज वेयर देयर इज अ फंक्शनल ओवरलैप आल्सो. जैसे हमारा आर्टिकल 75 है, इट टॉक्स अबाउट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज इट टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट दैट एवरी मिनिस्टर इज बाउंड टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. कोई भी मिनिस्टर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह पाता 6 महीने तक तो ही विल ऑटोमेटिकली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज अ मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट. देन वी सी आर्टिकल 53 एज वेल एज आर्टिकल 79. हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड एट द सेम टाइम ही इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. अब आपने प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव भी बना दिया और उनको पार्लियामेंट का पार्ट भी डिक्लेयर कर दिया है. देन फाइनली देयर इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. ये भी एक फंक्शनल ओवरलैप है. अभी हमने देखा कि जो लॉ मेकिंग है इट इज सपोज टू बी अ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, बट देन इन केस ऑफ आर्टिकल 123 वी क्लियरली सी 123 में प्रेसिडेंट हो गए, 213 में गवर्नर हो गए. वी क्लियरली सी दैट they can legislate on behalf of parliament in emergency situations and especially when the parliament is either or both houses of parliament are not in session. What it essentially is doing is it is allowing for the executive to legislate on behalf of the parliament when the parliament is not in session. Basically executive is doing a law making function. Then again delegated legislation का concept इंडिया में allowed है, wherein the parliament can delegate its legislative powers itself to the center or the state governments for the purposes of making rules. तो अब इन सब पॉइंट्स को हम देखते हैं तो वी क्लियरली सी देयर इज अ फंक्शनल ओवरलैप हैपनिंग. ठीक है. देन सिमिलरली वी हैव फंक्शनल ओवरलैप्स विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव आल्सो. अब आर्टिकल 50 तो एक बार हमने देखा कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स to ensure the separation of judiciary from the executive in public services with respect to public services of the state. ये आर्टिकल 50 बोल रहा है. देन अगेन इस आर्टिकल के अंदर दिए हुए प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए वी सी द लेजिस्लेचर हैज पास द सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अब बीएनएसएस हो गया है 2023 ऑनवर्ड्स, व्हिच एसेंशियली सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. बट अगेन वी ऑल्सो सी द कंसेप्ट वेयर इन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर they have been given an immunity from the application of judicial review. ठीक है. और for that matter court proceedings. तो यहां पे हो क्या रहा है, कंप्लीट जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं दे रहे हैं हम जुडिशरी को. देन अगेन जुडिशरी के रिस्पेक्ट में भी अगर हम बात करें तो जैसे प्रेसिडेंट है आर्टिकल 72 में ही हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग व्हिच इज एसेंशियली जुडिशियल पावर. ठीक है. अब ये जो है पावर ऑफ क्लेमेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट और फॉर दैट मैटर पावर ऑफ क्लेमेंसी ऑफ द गवर्नर, इट ओवरलैप्स विद द जुडिशियल फंक्शंस. देन आर्टिकल 323 या फिर 323 बी में हम देखते हैं वी सी ट्रिब्यूनल्स गेटिंग असाइंड, वी नो व्हिच डिस्पेंस जस्टिस. मतलब जो जुडिशियल फंक्शंस है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी परफॉर्म कर रही है. तो एसेंशियली अब ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ बोथ जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स. तो अब यहां पे हो क्या रहा है, जो कोर्ट जुडिशियल फंक्शन है वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज भी परफॉर्म कर रही हैं. फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो जुडिशियल अथॉरिटी है, जुडिशियल फंक्शनरी है, बट डिस्पाइट दैट ही एक्ट्स एज अ रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इलेक्शंस और ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. या फिर हम नॉमिनेशन पेपर्स हैं जिनको स्क्रूटिनाइज करना हो गया, उनको कैंसिल करना हो गया, एक्सेप्ट करना हो गया, ये सारे के सारे
कोर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी परफॉर्म कर रहे हैं. सो वी सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. सिमिलरली अगर हम जुडिशियल और लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में बात करें तो देखिए वहां पे भी कुछ जगह सेपरेशन आपको क्लियरली दिखता है आर्टिकल 50 के अलावा भी. जैसे आर्टिकल 121 है, इट क्लियरली सेज दैट देयर कैन बी नो डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीडिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द कोर्ट और मोर इंपॉर्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. ठीक है, व्हाइल दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज. उनका जो भी कॉन्डक्ट है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता है. फिर सिमिलरली आर्टिकल 122 जो है वो भी यही सिमिलर चीजें बोलता है. इट सेज दैट द कोर्ट्स दे आर रिफ्रेन्ड और दे आर बाउंड नॉट टू इंटरफेयर और इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. ना तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में डिस्कस हो सकती है, ना कोर्ट के जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है. एट द सेम टाइम वी हैव अ पॉइंट ऑफ फंक्शनल ओवरलैप ऑल्सो. जैसे आर्टिकल 61 में देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है इसके पास एक क्वासी जुडिशियल पावर आ जाती है जब हम प्रेसिडेंट को इंपीच कर रहे हैं. अब इंपीच करना एसेंशियली जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसीजर है, बट वो पार्लियामेंट परफॉर्म कर रही है. ठीक है, इवन जुडिशरी के रिस्पेक्ट में भी हम कहें कि व्हेन जुडिशरी इज declaring or interpreting a particular law in a particular manner, then essentially what is happening is we get to see a law which the judge declares to be a law. अगर किसी particular law को जज ने unconstitutional declare कर दिया तो it is beyond the competence of the legislature to legislate that law. ठीक है, एट द सेम टाइम किसी पर्टिकुलर लॉ को जज किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, दैट वुड इनवेरिएबली बी द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एक्चुअली द लेजिस्लेचर इंटेंडेड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग दैट लॉ. ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म है. ये तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के रिस्पेक्ट में आ जाएगा. देखिए जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्सुअल हैरासमेंट और वर्कप्लेस के रिस्पेक्ट में अपनी गाइडलाइंस इशू की. अब ये गाइडलाइंस जो है ये एसेंशियली लॉ मेकिंग फंक्शन हो गया. अब ये लॉ मेकिंग फंक्शन लेजिस्लेचर का फंक्शन पार्ट है, बट डिस्पाइट दैट द जुडिशरी इज डूइंग इट. ठीक है, सिमिलरली जुडिशरी अगर अभी हम तमिलनाडु गवर्नर का केस आगे देखेंगे, वहां पे जुडिशरी टोटली ask the governor to perform his duties in a time bound manner in a particular manner. अब जो गवर्नर का अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने का टाइम बाउंड तरीका है उसको भी जुडिशरी डिक्टेट कर रही है. दैट इज टोटली इट अमाउंट्स टू जुडिशियल एक्टिविज्म. इनफैक्ट फॉर सम इट इवन अमाउंट्स टू जुडिशियल ओवररीच ऑन पार्ट ऑफ द जुडिशरी. ओके, सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उनको अगर हम डीपली स्टडी करें तो व्हाट दे एसेंशियली इंप्लाई इज कि कुछ केसेस में वी डू कम अक्रॉस अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द ऑर्गन्स, बट एट द सेम टाइम इन केस ऑफ इंडिया unlike USA we see a lot of scenarios where there are functional overlaps happening between the various organs of the state. Then if we look at the landmark judgments, देखिए कई सारे judgments हैं जहां पे separation of powers डिस्कस किया है. I have picked up a few of them. एक राम जवाया कपूर का जजमेंट, इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसमें डिस्कस हुई थी. एसेंशियली व्हाट इट वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस वाज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट indeed recognized the doctrine of SOP or separation of powers in its absolute rigidity. जो मोंटेस्क्यू का फॉर्मुलेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने उसको उस एब्सोल्यूट रिजिड फॉर्म में अडॉप्ट नहीं किया है. इंस्टेड जो फंक्शंस हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के, वो फंक्शंस सफिशिएंटली डिफरेंशिएट तो करे गए हैं, बट एसओपी को हम लोगों ने एब्सोल्युटली रिजिड फॉर्म में अडॉप्ट नहीं किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में. ओके, देन देयर इज दिस अनदर लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. इसमें एसेंशियली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिड इज व्हाइल इट टॉक्ड अबाउट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट to amend the entirety of the constitution en bloc, but it also laid down a doctrine of basic structure. इन्होंने कहा कि कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. इन बेसिक स्ट्रक्चर में आने वाले प्रोविजंस को पार्लियामेंट एब्रोगेट या अब्रिज नहीं कर सकती है. बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू देम द पार्लियामेंट हैज कंप्लीट पावर ऑफ एब्रोगेशन. ओके, देन जब इन फीचर्स की बात करेंगे विच फॉर्म पार्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, amongst others इसमें concept of separation of powers was also laid down by the honorable supreme court. Okay, then we have the case law of Indira Gandhi versus Raj Narayan. देखिए इंदिरा गांधी वर्सेस केस, राज नारायण का जो केस था, इसमें अगेन द सुप्रीम कोर्ट बिल्ट अपॉन द लॉ लेड डाउन इन केशवानंद भारती केस एंड इट रीअफर्म दैट पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसमें अगेन while delineating those basic structures what it essentially said is के
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस हो गया, या फिर रूल ऑफ लॉ हो गया, ये सारे के सारे दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड. देन उस पर्टिकुलर केस के जो फैक्ट्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ दोस फैक्ट्स द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन आर्टिकल 329A में जो क्लॉज था, उसको एक पर्टिकुलर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 329 को द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट essentially what it did is it took away the power of the Supreme Court to look into the petitions with respect to election of the prime minister. जो power of judicial review of judiciary है उसको ये abrogate कर रहा था, तो which that power of judiciary being a part of the basic structure, so it was held that the decision of the parliament to amend the constitution in a manner which takes away the power of judiciary to judicial review executive actions or elections for that matter is a violation of basic structure and beyond the limits of the legislature, and because it infringes judicial independence. आप जुडिशियल रिव्यू को ले लेंगे तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंफ्रिंज हो रही है, तो इट इज इंपैक्टिंग द सेपरेशन ऑफ पावर्स आल्सो व्हिच अगेन इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन वी हैव द केस ऑफ आयर कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इसमें essentially what it dealt with is it dealt with the all those laws which have been inserted by the parliaments into the 9th schedule. अब 9th शेड्यूल में जो लॉज आते हैं उसके रिस्पेक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, उसके बाद से जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले गए हैं they can be challenged if they violate the basic structure of the constitution. They will not be given the immunity provided by the 9th schedule with respect to all those laws which were kept into 9th schedule before the passing of the केशवानंद भारती जजमेंट. ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बेसिस पे अगर कोई लॉ चैलेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रीमाइस पर, तो हम उनको चैलेंज कर सकते हैं नो मैटर दे आर इन 9th शेड्यूल और नॉट. बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, देन अगेन वी कैन चैलेंज देम. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, देन आल्सो वी कैन चैलेंज दोस लॉज एंड सो ऑन. दे कैन नॉट गेट दैट ब्लैंकेट इम्यूनिटी एज दे वर प्रोवाइडेड प्रायर टू द passing of the Keshwanand Bharati judgment merely by they being placed into the 9th schedule. Okay, then NJC case, ये National Judicial Judges Appointment case जो था अभी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कलीजियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो पार्लियामेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई थी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने. एंड व्हाट इट एसेंशियली सेड दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and it cannot be, that independence of judiciary cannot be compromised, and where you are including executive members such as law minister or eminent persons into the selection panel which selects the judges for the post of Supreme Court and High Court judges, that amounts to the violation of separation of powers as well as judicial independence. So accordingly, that particular bill which allowed for National Judicial Appointment Constitution Commission, उस बिल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, देखिए व्हाट एसेंशियली द कोर्ट डिड इज इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज इट एंश्योर्ड दैट the system of check and balance that is prevalent in our constitutional scheme, it cannot and it must not be misused to dilute judicial independence. ठीक है, then if we look at the current affairs or various controversies which are in vogue, time frames को देखें तो कई सारे areas है जहां पे हम देख रहे हैं there are controversies which are arising which directly or indirectly deal with the doctrine of separation of powers. अभी recently we saw article 143 में के रिस्पेक्ट में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आई है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने has asked for a reference of the Supreme Court and has quoted 14 questions to the Honorable Supreme Court and asked for a advisory opinion of the Honorable Supreme Court with respect to these questions. What essentially it deals with is the power of the Supreme Court to decide whether the Supreme Court can decide the timeline within which the constitutionally assigned functionaries can perform their discretionary function or not. इस तरह से कई सारे questions उसमें उन्होंने Honorable Supreme Court के सामने put up करे हैं, which essentially talks about or rather raises question on the concept of judicial activism as well as the presidential judiciary interface or the governor judiciary interface for that matter. अब यहाँ पे president has sought Supreme Court's opinion on these laws which have been passed by the Tamil Nadu State Assembly and they were later withheld by the governor, and in that particular case the Legislative Assembly went to the Honorable Supreme Court for its interference, and accordingly the Supreme Court laid down certain guidelines as well as certain particular
क्या कहते हैं, उन्होंने टाइमलाइन दी कि भाई इस टाइमलाइन में गवर्नर को अपना डिसीजन लेना ही होगा अपने असेंट देने या ना देने का, ठीक है। अब एसेंशियली व्हाट दिस हैज डन इज, व्हेन सुप्रीम कोर्ट इज डिक्टेटिंग द टाइम period within which the governor must or must not give assent to bills, it is essentially raising a separation of power related issue between executive, legislature and judiciary. भाई executive अपना constitutionally delineated function कितने टाइम फ्रेम में परफॉर्म करेगा, दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी, और इफ इट कैन बी तो व्हाट अथॉरिटी डज द जुडिशरी हैज इट बिकम अ सुपर जुडिशरी, और व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो, ठीक है। देन अगेन तमिलनाडु गवर्नर जो भी मैं बता रहा था, दैट हैज बीन अ मेजर कंट्रोवर्सी, इसी के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल 143 की रेफरेंस भी गई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के बिल्स को गवर्नर ने बहुत लंबे टाइम तक अपने टेबल पे पेंडिंग रखा, एंड देन फाइनली व्हेन दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नर विदहेल्ड द असेंट, कुछ को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के पास भेजा और कुछ को फिर बाद में उन्होंने असेंट विदहेल्ड कर दी। नाउ एसेंशियली व्हाट ही हैज डन इज ही हैज टेकन द कॉन्स्टिट्यूशनली डेलिनेटेड पाथ, बट was it ethically correct, was it constitutionally correct, was it in spirit of the constitutional ideology जो है उसके respect में, was it in line with that constitutional spirit or not, or did he actually not perform the functions which have been segregated or given to him under our constitutional scheme, ठीक है। देन ऑर्डिनेंसेस ओवर दिल्ली सर्विसेज कंट्रोल, देखिए ये भी एक इशू था कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके और उनके जो गवर्नर थे उनके रिस्पेक्ट में एक मेजर, अभी केजरीवाल गवर्नमेंट के टाइम पे खासतौर पे देयर वाज अ मेजर डिस्प्यूट हैपनिंग बिटवीन देम, देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन एंड एक्चुअली कम एंड से दैट द इवन इन केस ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली द गवर्नर इज सपोज्ड टू एक्ट on the aid and advice of the elected council of ministers, except a few areas where he can act on the basis of his discretion as well as on the recommendation of the central government, ठीक है। but इस particular case में तो essentially dealt with who has control over services, and the honorable supreme court essentially said that the Delhi government has the power over services एक्सेप्ट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर, इन 3 ग्राउंड को छोड़ के बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनके रिस्पेक्ट में जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके पास पूरा कंट्रोल है, एंड द गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन इट्स एड एंड एडवाइस, ठीक है। व्हाट एसेंशियली इट्स शोइंग द टसल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, as and tussle with respect to control and interpretation of the constitutional provisions, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट व्हाट इट हैज डन इज इट हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट इन व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग द सर्विसेज and highlighting the executive legislative conflict in the case of union territories, ठीक है। then again there was this controversy with respect to role of the speaker in case of defections, नाबाम राबिया का केस है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे भी यही था कि भाई when the speaker delays in disqualifying the members who have defected, this essentially violates the spirit of impartiality laid down in our constitution and essentially works against the constitutional spirit or the constitutional role laid down अंडर द स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसमें जो पर्टिकुलर फंक्शनरी है उसके लिए जो रोल असाइंड है उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है, ओके। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ऑन बेल्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये हो गई, या फिर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होगी। एसेंशियली अब इसमें भी है क्या, वी क्लियरली सी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इज एनक्रोचिंग इट्स एरिया और अदर टेकिंग एन एक्टिविस्ट लाइन ऑफ थॉट वेयर इट इज लेइंग डाउन गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू बेल एज वेल एज पुलिस रिफॉर्म्स। देन एट द सेम टाइम जब हम एग्जीक्यूटिव के एंड पे देखते हैं, वी सी अ क्लियर शनिंग अवे ऑन पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग दोज गाइडलाइंस एंड applying them into the actual governance mechanism, okay। then कंट्रोवर्सीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में वी कैन अंडरस्टैंड चैलेंजेस क्या है एसेंशियली सेपरेशन ऑफ पावर्स के। देखिए कुछ एस्पेक्ट्स हैं व्हिच आर एक्चुअली एक्टिंग एज चैलेंजेस टू द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फंक्शनल ओवरलैप्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एज आई टोल्ड बिफोर, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर द डिविजन्स, देयर हैज बीन अ क्लियर डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द ऑर्गन्स, बट देयर आर आल्सो द एरियाज वेयर इन देयर आर फंक्शनल ओवरलैप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स टू इंश्योर द चेक्स एंड बैलेंसेस बाय वन ऑर्गन ओवर अनदर। जुडिशरी है वो पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी के जजेस को इंपीच कर सकती है, लेजिस्लेचर है वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव को अपनी पोस्ट से हटा सकती है, एग्जीक्यूटिव है जो वो पार्लियामेंट में लॉज लेकर आता है। दे ऑल फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ मिक्स वेयर इन ईच एक्ट्स एज एन चेक एंड बैलेंस। बट अब इसमें हो क्या रहा है कि भाई ये जो स्ट्रक्चरल ओवरलैप्स हैं, दे ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन व्हिच एसेंशियली वाज अ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन एज पर मोंटेस्क्यू, ओके। फिर अगेन वी सी द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए अभी जैसे तमिलनाडु वाले केस के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा था, अगर जुडिशरी ले डाउन करेगी कि गवर्नर कितने टाइम फ्रेम में अपना
डिसीजन लेगा, दैट इज एसेंशियली जुडिशरी making as a parliament. It is, making laws on behalf of parliament just because it is the highest court of interpretation. You are supposed to interpret the laws, but you cannot interpret in whatsoever manner you want to decide. Moreover, you cannot interpret them in a manner which clearly shows an overreach on your part over and beyond the limits that have been prescribed for you by the Constitution of India. ठीक है, NJSC का जजमेंट जो हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट का देखते हैं, वहां पे भी we clearly see कि the judiciary has completely abolished decision taken by the Parliament of the India and has told that it amounts to a interference into our own matters, thereby asserting judicial primacy with respect to appointment of the Supreme Court judges. अब देखिए ये सारी चीजें हो रही है, जो ये कर क्या रही है, दे आर एसेंशियली क्रिएटिंग टेंशन विद इन वेदर इट्स बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और इट इज बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड एसेंशियली ये अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बहुत मेजर क्वेश्चंस ले डाउन करती है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिसरिगार्ड ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, हम अभी भी देख रहे थे कि बेल के या फिर प्रिजन रिफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में जो गाइडलाइंस है, एग्जीक्यूटिव जो है उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, दे आर इग्नोरिंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव. और बहुत सारी गाइडलाइंस है जिसको एग्जीक्यूटिव हैज स्टिल नॉट फॉलोड, व्हिच एसेंशियली रिजल्ट्स इन इंप्रूविंग और इंक्रीजिंग द फ्रिक्शंस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. देन डिलेड जुडिशियल डिसीजंस है. देखिए हम जुडिशरी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, जो एसेंशियल बैकलॉज और डिलेज हो रहे हैं ऑन पार्ट ऑफ द जुडिशरीज, वो सारे के सारे डिलेज दे अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज वेल एज द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन द विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी और एंटायर जुडिशियल प्रोसेस. तो वो अगेन वर्क्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. देन वी सी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे लेजिस्लेचर है वो बिना प्रॉपर डिबेट के बिल्स पास कर रही है, हमारी जुडिशरी है, इट इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट डिस्पाइट दैट इट इज इंटरप्रेटिंग लॉज इन अ मैनर वेयर इन इट एक्चुअली गेट्स टू even lay down a particular law despite not being a part of the parliament. इस तरह से देखिए हो क्या रहा है कि भाई people are not accountable for their actions, which is not good for the spirit or for the growth of the governance or growth of the state as well as for applications of the constitutional provisions into the state. ओके, रिफॉर्म्स की बात करें तो प्रॉब्ली जितने भी हमारे रिफॉर्म्स कमीशंस हैं, बहुत सारे कमीशंस हैं आपके, सरकारिया हो गया, पुंची कमीशन हो गया, सेकंड एआरसी होगा, दे हैव ऑल लेड डाउन मोर और लेस टॉक्ड ऑन द सेम लाइन कि भाई देयर शुड बी क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स, और अदर whatever segregation has been made, all organs must give a regard to this segregation or the differentiation made by the Constitution of India and must respect the roles laid down for each organ by the Constitution of India. ठीक है, गवर्नर्स के रिस्पेक्ट में सरकारिया कमीशन बोलते हैं, he urges restraint on part of the governor, and जुडिशरी के लिए भी वो बोलते हैं कि the judiciary must ensure a self restraint while dealing with interpretation of the Constitution. Second ARC है, it has emphasized upon the need for code of conduct for each organ of the state so as to ensure a due performance of its function by that particular organ. या फिर institutional mechanisms हैं, उनके creation के लिए second ARC बोलता है, ताकि there can be a cooperation between various organs of the state without any sort of friction between those organs. Okay, way forward की अगर हम बात करें ना, तो देखिए way forward में क्या है कि there are certain things which we can adopt. आप you can institutionalize the conciliative mechanisms between various organs. जो भी institutional frictions हो रहे हैं, institutional crisis हैं, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं if you will bring out some sort of mechanism wherein all the organs can have regular communication, regular consultation with respect to burning issues which are hampering their mutual coordinations. देन कोडिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन बहुत रेलिवेंट रिफॉर्म है भाई. अगर आप गवर्नर है, गवर्नर की टाइम लिमिट ले डाउन कर देते हैं जिसमें उनको अपने बिल्स को पास करना है, विदहेल्ड कर रहे हैं तो उनको इतने टाइम लिमिट में विदहेल्ड करना है, देन इट ऑटोमेटिकली लेज डाउन कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन देयर पर्टिकुलर एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फंक्शंस, एंड इट इज इनवेरिएबली बाउंड टू रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस. फिर ensuring a time bound judicial and legislative action. देखिए अगर आप टाइमली लेजिस्लेटिव एक्शन लेंगे, बिल्स को टाइम से पास कर रहे हैं, प्रॉपर डिबेट के साथ पास कर रहे हैं, गिलोटिन नहीं का यूज कर रहे हैं, या फिर जुडिशरी के टाइम पार्ट में भी वी आर एंश्योरिंग दैट दे सेटल डाउन द इंटरप्रेट द लॉज इन टाइम, दे सेटल डाउन द केसेस और डिस्प्यूट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर, दे डू नॉट डू अ जुडिशियल ओवररीच विद रिस्पेक्ट टू फील्ड्स रिजर्व्ड फॉर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. This is invariably going to uphold responsiveness on the part of the organs of the state. Then promoting judicial restraint as well as judicial clarity in terms of activism. भाई एक्टिविज्म आप करिए, बहुत अच्छी बात है, यू आर रिमाइंडिंग द एग्जीक्यूटिव ऑफ द फंक्शंस इट इज सपोज्ड टू परफॉर्म, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट एंश्योर दैट यू डू नॉट एक्चुअली डील डाउन एंड start performing the functions of the executive itself.
remind them that this is your job to do, remind them that you have not done your job properly. That is good. But coming there and doing their job, or you are asking them, no, you're supposed to do this particular job in this particular time frame, or you are supposed to do it in this particular manner, that is a very, very far reaching consequence with respect to health of the democracy. ओके, स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, देखिए बहुत जरूरी है पार्लियामेंट्री कमिटीज को स्ट्रेंथन करना, ताकि हम एक लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को इंप्रूव कर सकें एंड वी कैन एंश्योर द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस executive or departments as well as executive corporations or members of executive for that matter as a whole via doctrines such as क्या कहते हैं, doctrines of check and balances, doctrine of proportionality and so on. और अकॉर्डिंगली हम इंश्योर कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव एज एन ऑर्गन ड्यूली परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस. ओके, सो कंक्लूजन में देखिए, अगर इफ आई हैव टू से, देखिए द ऑर्गन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट रिस्पेक्ट देयर लक्ष्मण रेखा. ये बहुत रेलेवेंट है और बहुत जरूरी है, ठीक है. और हमारी इस डॉक्ट्रिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूंगा तो जो एसओपी है, इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द गवर्नेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नेंस. इंडियन मॉडल जो है, इट एसेंशियली एम्ब्रेसेस द इंडिपेंडेंस एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी टुगेदर, while at the same time going for a non-watertight separation. But at the same time हम ये भी देख रहे हैं कि the boundaries between various organs, because there is no clear demarcation of boundaries, they are these boundaries, एक तो इनका clear demarcation नहीं है, फिर there is a overreach happening on part of various organs. This essentially is eroding the boundaries between various organs on account of their actions such as institutional assertiveness, political compulsions and so on. अब देखिए यहाँ पे जो भी डेमोक्रेसी है, as our democracy is maturing, we must understand that the institutions must mature accordingly and proportionately by recognizing that Lakshman Rekha that has been laid down into the constitution for them, and without retreating into passivity or without over asserting their activeness or their zeal and thereby encroaching into the area reserved for anyone else. Okay, anyways, as far as any student of UPSC who is watching this lecture, they are concerned, you must pay clear attention to first of all the idea that are we actually if we look at this entire lecture as well as the controversies, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो essentially कहीं ना कहीं या तो इस टॉपिक के ऊपर ही आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, व्हाट इज रेलेवेंस इन द इंडियन गवर्नेंस मैकेनिज्म, या फिर इससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज है उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ रहा है. तो यू विल एक्चुअली हैव टू मेक एन अप्रोच और सेल्फ conclusion with respect to ideas such as whether we are actually heaving or moving towards a super judiciary or for that matter a hyper politicized executive in case of Indian scheme of things. यहाँ पे basically आपको करना क्या, you will have to actually delineate the entire thing. You will have to delineate what is the doctrine, you will have to delineate what are the core elements as well as principles which have been given, major landmark judgments जो इसमें हुए हैं या फिर current affairs इससे related है, and then finally a way forward with respect to this entire particular paradigm. ठीक है, इसको आप इसे accordingly prepare कर सकते हैं. Then for moreover this topic is highly relevant with respect to all aspects. आपका GS2 का पेपर है, वहां सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है. पबेड आपका ऑप्शनल है, पॉल साइंस आपका ऑप्शनल है, वहां पे इट इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक. एसए में आपके लिए बहुत रेलेवेंट है. एथिक्स की जो केस स्टडीज है या फिर उसके क्वेश्चंस है, उसमें अगेन इट्स हाईली रेलेवेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर यूपीएससी जीएस मेंस. ठीक है, सो आई थिंक दैट्स अबाउट ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक दैट वी नीड टू एसेंशियली नो फॉर नाउ. So please do like and subscribe if you like this particular class and you would want to receive more such deep dives or more such classes on other similar topics such as आपका federalism हो गया या फिर judicial reforms हो गए and so on. And for all those people who are a UP aspirant and watching this particular class, do comment below on this line. Should India stick to its particular or rather this present flexible separation of powers, or should we go for a stricter constitutional demarcation as we see in case of constitutions like USA and so on? All right, thanks and have a great day.